সেই সব অপরাধমূলক ফাঁদ যাতে রাজ্যের মানুষ আগেভাগে অবগত হতে পারেন, তাই এই বিশেষ প্রচারমূলক ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ফ্ল্যাগ অফ করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। সবুজ পতাকা নেড়ে এই বাসকে তিনি চালু করে দিলেন। অত্যন্ত সুসজ্জিত বাসের মধ্যে এলসিডি স্ক্রিন থাকছে, বিভিন্ন কমিক চরিত্রের মাধ্যমে সবাইকে, বিশেষ করে ছোটদের সচেতন করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। শহরের অনেক স্কুলে, টুরিস্ট স্পটে বাসটি ঘুরে বেড়াবে। আমরা এবারে যাব মূল মঞ্চে। গঙ্গাসাগর মেলার আউটরাম ঘাটের ট্রানজিট পয়েন্টে উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আর দুদিন পরেই 12ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণ জন্মতিথি। আমরা তার প্রতিকৃতি রাখা রয়েছে মঞ্চের ওপরে, সেখানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে আজকের অনুষ্ঠানের সূচনা করব। অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপস্থিত সমস্ত বিশিষ্ট অতিথি যারা আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসেছেন তাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে। উপস্থিত সমস্ত অতিথিরাই পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দকে। ভারতের যুব সমাজের তারুণ্যের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ খুব স্বল্পকালীন জীবদ্দশাতেও যিনি সারা বিশ্বে একটা নাড়া দিয়ে গিয়েছিলেন ভারতের অধ্যাত্মবাদকে এক সুউচ্চ স্থানে স্থাপন করে।
প্রদীপ প্রজ্বলন করে গঙ্গাসাগর মেলার প্রতি বছরের মতো আউটরাম ঘাটে যে বিশেষ ট্রানজিট ক্যাম্প আমরা আয়োজন করি, সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা পুণ্যার্থীদের জন্য, সাধু সন্তদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়, তার শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রদীপ প্রজ্বলন করে। একটু আগেই তিনি বাইরে একটি সাইবার সচেতনতা সংক্রান্ত বাসের উদ্বোধন করে এসেছেন। এখানে আমরা একে একে দেখব, এখান থেকেই ভার্চুয়ালি তিনি উদ্বোধন করবেন। আউটরাম ঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার এই গ্রাউন্ডে গঙ্গাসাগর যাত্রীদের সুবিধার্থে ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের একটি ক্যাম্প, তার শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। দুর্নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে শুভ সূচনা করলেন ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের ক্যাম্প অফিসার। এই সঙ্গেই আউটরাম ঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার গ্রাউন্ডে গঙ্গাসাগর যাত্রীদের সুবিধার্থে রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজের ক্যাম্পেরও অফিসের শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরেকটি উদ্বোধন এখান থেকে অনেকটা দূরে টালিগঞ্জে মুর এভিনিউতে, সেখানে সাউথ সুবার্বান ডিভিশনের, যাদবপুর ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশের নতুন অফিস চালু হয়েছে। এটি আগে 2011 সাল থেকেই চালু ছিল টালিগঞ্জ এমার্জেন্সি ফোর্স লাইন্সে। নতুন করে রিজেন্ট পার্কের পুরনো একটি বাড়িকে সুন্দর করে সাজিয়ে নতুন করে সেখানে এই সাউথ সুবার্বান ডিভিশনের, যাদবপুর ডিভিশনের সেটিরও শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা পুলিশের দক্ষিণ শহরতলি বিভাগের নতুন অফিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটিরও শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমি অনুরোধ করব আমাদের রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি শ্রী বিপি গোপালিকা, তিনি সূচনায় সকলের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। এখানে উপস্থিত সবাইকে আমার শুভেচ্ছা আর নমস্কার। আউটরাম ঘাটে আজকে গঙ্গাসাগর ট্রানজিট ক্যাম্প উদ্বোধনে এসে আমি খুব খুশি আর গর্বিত। সর্বপ্রথমে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে আসার জন্য ও সময় দেওয়ার জন্য। এর সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী পিএইচই ডিপার্টমেন্ট শ্রী পুলক রায়, সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমাদের অ্যাডভাইজার, চিফ অ্যাডভাইজার টু অনারেবল চিফ মিনিস্টার, চিফ অ্যাডভাইজার ফাইন্যান্স, আর উপস্থিত আছেন বিভিন্ন আমাদের ডিজি পুলিশ শ্রী রাজীব কুমার, কমিশনার অফ পুলিশ কলকাতা, আর বিভিন্ন আমাদের দপ্তরের সেক্রেটারিবৃন্দ আর উপস্থিত আছেন। তার সঙ্গে আমি তাদেরও স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের राष्ट्रीय बिहारी समाज श्री हरिंदर सिंह और अन्य जो लोग हैं, और इसके साथ जो भारत राष्ट्रीय समाज से जो उपस्थित हुए हैं, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
ये ट्रांजिट डैम का आज इनॉग्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने किया। इसमें राज्य सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के लीडरशिप में जितनी प्रकार की सुविधाएं होती हैं उसको यहाँ पर दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट सब तरह की व्यवस्था करती हैं और केवल कलकत्ता में नहीं, कलकत्ता से लेकर रास्ते में प्लस गंगासागर में हर तरह से व्यवस्था की जाती है। लाखों श्रद्धालु और तीर्थयात्री आते हैं। सभी को यहाँ पर स्टेट की तरफ से हम लोग का स्वागत है और हम लोग चाहते हैं कि सभी की ये जो तीर्थ यात्रा हो वो सफल हो और शुभ हो। यही बोल करके आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद दे करके मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। नमस्कार। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করছেন আমাদের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার শ্রী এইচ.কে দ্বিবেদী তিনি কয়েকটি কথা বলবেন। माननीय मुख्यमंत्री को नमस्कार। आप सब लोग जो आज अनुष्ठान में आए हैं सब लोग को आमंत्रण और नमस्कार मेरी तरफ से। गंगा सागर आप लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा एक तीर्थ हम लोग हिंदुओं के लिए है। जैसे मैडम भी बोल रही हैं और हम लोग भी जानते हैं सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो एक समय ये कहावत हम लोग के, मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ और ये कहावत बहुत प्रचलित है और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक धाम माना जाता है तो सब हिंदुओं में एक बहुत बड़ी इच्छा होती है कि मरने से पहले एक बार गंगा सागर जा कर के जहाँ माँ गंगा सागर से मिलती हैं वहाँ पर एक बार दर्शन किया जाए, वहाँ पर स्नान किया जाए। मुझे याद है 2006-7 में मेरे खुद के पेरेंट्स जो अभी मेरे मदर हैं, फादर है 87 इयर्स और मदर हैं 85 इयर्स, उन्होंने इच्छा प्रकाश की कि मैं जब डीएम नॉर्थ 24 परगनास था तो मुझे एक बार गंगा सागर के दर्शन करा दो। तो मैं उनको लेके गया था और मैं जानता हूँ कि कितना कष्ट से मैं पहुँचा था वहाँ पर। डीएम होते हुए भी सब सुविधा होते हुए भी गंगा सागर जाना एक दुर्लभ की बात थी। बहुत ही कष्ट होता था और जो बाहर से आते हैं, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया से, और जो इतने कष्ट करके उनको जाना पड़ता था और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बहुत लोग ऐसे मानता थी कि जो एक बार जाते हैं वापस नहीं आते हैं। आज आप लोग जाइए गंगा सागर में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की लीडरशिप में जो विगत 10 साल में जो काम हुआ है, आज हम लोग मैडम की मीटिंग में कल हम लोग गए थे और वहाँ से यहाँ पर आने में जो इतने आराम से जो आ गए हैं, जहाँ पर क्रॉस करना पड़ता है, नदी को क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ की सुविधा है। आज हमारे सागर आइलैंड में 24 घंटे बिजली रहती है। जो गंगा सागर में जो तीर्थ यात्री आते हैं उनके लिए सुविधा, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा है वो माननीय मुख्यमंत्री की लीडरशिप में बड़ा है। और आज मैं जानता हूं कि हम लोग के यूपी से, मेरे गांव से, मेरे इलाका से बहुत लोग आते हैं जिनको मैं दर्शन कराता हूं, कि बहुत से वीआईपीज आते हैं बाहर से, उनको दर्शन कराता हूं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो जो बात बोल के जाते हैं, बहुत गर्व महसूस होता है कि पश्चिम बंगाल में जहाँ पर एक इतना बड़ा तीर्थ स्थान, जहाँ माना जाता था कि एक बार आएंगे और वापस नहीं जाएंगे, वहाँ पर लोग दर्शन करके और जो आनंद मिलता है उनको और जो अच्छी जो मेमोरीज़ लेके जाते हैं और बहुत अच्छा नाम लेके जाते हैं पश्चिम बंगाल का, वो बहुत ही बड़ा गर्व होता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को विशेषकर धन्यवाद देता हूँ। उनके मार्गदर्शन में, उनके लीडरशिप में ये सब काम हुआ है और जो उनकी जो विज़न है गंगा सागर को लेकर के, मैं बहुत ही दृढ़ विश्वास है मेरा कि सामने जो आने वाला समय है, ये तीर्थ स्थान केवल जो कि हमारे हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान माना जाता है, एक बहुत बड़ा एक सम्मान के रूप में जो है वो और सम्मान बढ़ेगा। और हम लोग के पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री के लीडरशिप में हम सब लोग को जो अच्छा जो बोल के जाते हैं, मेमोरीज लेके जाते हैं और जो अच्छा अनुभव लेके जाते हैं, आनंद लेके जाते हैं, उन सब से हम लोग को और भी और गर्व महसूस होगा। मैं विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दे करके मैं अपनी वक्तव्य खत्म करता हूँ। धन्यवाद।
এটা খনার বচন ছিল সপ্তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার, সেটাও অসত্য প্রমাণিত হলো যে উন্নয়ন বিগত 10-11 বছর ধরে হয়েছে গঙ্গাসাগরে যাবার জন্যে। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা সংযুক্ত সমিতির মাননীয় প্রেসিডেন্ট শ্রী তারকনাথ ত্রিবেদীজি। তাকে অনুরোধ করব দু একটি কথা বলার জন্যে। माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल परम श्रद्धेय ममता बनर्जी जी, यहाँ पर उपस्थित कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल जी, डायरेक्टर पुलिस राजीव कुमार जी, होम सेक्रेटरी श्री बीपी गोपालिका जी, होम सेक्रेटरी श्री नंदिनी चक्रवर्ती जी, राइट, चीफ सेक्रेटरी श्री बीपी गोपालिका जी, हमारे मिनिस्टर श्री पुलक राय जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएचई श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, होम श्री आलापन बंदोपाध्याय जी, एडवाइज़र सीएमओ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री एच.के. द्विवेदी जी, चीफ प्रिंसिपल एडवाइज़र सीएमओ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री संजय कुमार दास, एमडी WEBL गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री हरिंदर सिंह जी, चेयरमैन राष्ट्रीय बिहारी समाज, श्री रणधीर सिंह जी, क्षत्रिय समाज, श्री भरत मिश्रा, सेक्रेटरी जॉइंट कमेटी गंगा सागर तीर्थ यात्री संघ समिति, यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं, बहनों, भाइयों, मैं सभी तीर्थयात्री जितने एनजीओ यहाँ काम करते हैं, जितने तीर्थयात्री यहाँ आए हुए हैं, मैं सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि जब आप यहाँ चेयरपर्सन थी तृणमूल की, उस समय आपसे मेरा परिचय हुआ और उस समय मैंने आपसे अनुरोध किया था कि गंगा सागर की क्या दुर्व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति अगर स्नान करने जाता है तो लौट के जब आता है तो ये कहता है कि दोबारा मैं नहीं आऊँगा, और ये कल्पना उसकी रहती है कि अब दोबारा आने लायक मैं रह भी नहीं गया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा आपके सभाधिपति शमीमा शेख जी हैं, आप कम से कम जो जजिया कर 5 रुपए का लगा इसको तो आप ख़त्म कर सकती हैं। उन्होंने सहज स्वीकार किया और सबसे पहले उत्तर प्रदेशी देशवाली समाज का एक कैंप लगता था, वहाँ उसके उद्घाटन में आई। उसके बाद मेरे अनुरोध पर यहाँ संयुक्त समिति का कैंप जो लगा हुआ है उसके उद्घाटन में आई। उनकी गवर्नमेंट बनने के साथ उन्होंने जिस तरह से कार्य करना शुरू किया, जिस तरह से लोग आना शुरू हुए, आज सारे भारतवर्ष में इस गंगा सागर मेले का सुनाम है। पिछले साल, मैं और पीछे नहीं जाता हूँ, जितने यात्री हैं, जितने लोग काम करते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था है, 5 लाख का बीमा भी कराया गया है सरकार की तरफ से। और अगर कोई बीमार होता है तो ग्रीन चैनल है, किसी भी तरह से उसको स्वस्थ करने की पूरी प्रक्रिया है, हॉस्पिटल्स हैं। और डीएम, मैं यहाँ के जो डीएम है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है सुमित गुप्ता जी, उन्होंने बहुत पहले से मीटिंगें करके किस तरह से वहाँ पर सागर क्षेत्र में अच्छा काम किया जाए वो काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने कई मीटिंगें इसके लिए की, हमने सजेशन भी दिया। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री के साथ नवान में हमारी जब मीटिंग हुई थी, मैंने उनके साथ रखा कि यहाँ जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, यात्री जो यहाँ कलकत्ता को देखना चाहते हैं, कालीघाट जाना चाहते हैं, दक्षिणेश्वर जाना चाहते हैं, उनको बहुत कुछ पैसे लगते हैं। उसके लिए तुरंत उन्होंने साहस स्वीकार किया और आपको जानकर खुशी होगी कि उनके निर्देश से यहाँ प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था की गई। और अगर बल्क में कोई तीर्थयात्री जाते हैं तो उनके लिए बसेस की भी व्यवस्था हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने किया। आप जानते हैं कि पिछले साल जो तीर्थयात्री आए थे तो फॉग के कारण, कुहासे के कारण बहुत तकलीफ हुई, उसका भी ध्यान उनको था। और इस बार उन्होंने, जो डीएम हैं और जो भी हमारे मंत्री हैं उधर साउथ बंगाल में, वहाँ पर उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि इस बार बफर जोन क्रिएट किए जाएं, जो उस पार भी हो इस पार भी हो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जहाँ यात्री कहीं रुक जाते हैं
तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने की सब व्यवस्था की जाए। तो इतनी सुंदर व्यवस्था जो मुख्यमंत्री दिन रात सोचते हैं तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए एक ही कहना चाहता हूँ, संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जो असंभव था उसको आपने संभव कर दिखाया। ये आपकी सोच है। आपने सोचा कि जो अतिथि केवल पश्चिम बंगाल से ही नहीं, विदेशों से पश्चिम बंगाल में आते हैं, वो जाके सारे भारतवर्ष में, विदेशों में पश्चिम बंगाल की भूमि की, यहाँ की लोगों की भूर भूर प्रशंसा करें। और ऐसा हो रहा है। जो तीर्थयात्री आते हैं वो कहते हैं कि हम एक डुबकी यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी लगाती हूँ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लगाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पीएचई हो, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग मिलकर इस तरह से काम करते हैं जैसे सब जो आपके गवर्नमेंट के लोग हैं हम लोगों के साथ ऐसा काम करते हैं कि भूल जाते हैं कि हम सर्विस में। उनके दिमाग में यही रहता है कि किस तरह से ज़्यादा सेवा तीर्थयात्रियों की जाए। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री आपके सफल निर्देश के कारण ही हुआ है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम जो सोचते हैं, जो बताते 8,000 पुत्र पत्थर के हो गए थे भगीरथ के सफल प्रयास से जो जीवन पूरा उनको मिला इस पवित्र भूमि में, जो भारत के लोग स्नान करने के लिए आते हैं, तो इसका श्रेय, इसका पुण्य आपको भी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर धन्यवाद देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका सफल आपको आपके जीवन में मिलेगा। मैं आपको देख रहा था, आपके ऊपर जो प्रेशर है, जिस तरह से पहले से शायद कहीं आप कुछ मुझे कुछ भी हो, मैं ये कामना करता हूं कि आप दीर्घायु हो, स्वास्थ्य लाभ करें, अच्छी तरह से हम लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को वो सुविधाएं मिलें जो होना चाहिए। आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि आप इस इशू को यूनेस्को में ले जाना चाहती हैं, आप ले जाएं, पर क्यों हम भारत सरकार के ऊपर आपके साथ मिलकर प्रेशर करें कि इसको गंगा सागर मेला और डिक्लेयर करने के लिए बाध्य हो जाएं। हम सभी आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রী তারকনাথ ত্রিবেদীকে, গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রী संयुक्त समिति का वो প্রেসিডেন্ট हैं। এবারে আমরা কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ রাখবো রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজের চেয়ারম্যান ডক্টর হরিন্দর সিংকে। हम लोग के प्रिय, आज इस उद्घाटन समारोह में हम लोग के प्रिय और पूरे देश में लोकप्रिय, गरीब कुचलों के मसीहा और नए बंगाल के निर्माता हम लोग के प्यारी दीदी ममता बनर्जी को राष्ट्रीय बिहारी समाज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आपने इस 5 स्टार के तरह मेला का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय बिहारी समाज और हिंदी समाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। दीदी, मैं आए हुए पुण्यार्थी चाहे यहाँ हो या गंगा सागर, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने गांव में जाकर के अपने प्रधान को, अपने प्रतिनिधि को, अपने एमपी को जरूर बताएं कि हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री किस तरीके से, किस व्यवस्था में जो है यहाँ का आयोजन किया है। आप जो है जनप्रतिनिधि के रूप में जो है अपने अपने जनप्रतिनिधि को कम से कम ये जरूर बताइएगा कि हमारे मुख्यमंत्री किस तरह का आयोजन कर रही हैं, तथा यहाँ के जितने भी सेवा संस्थाएं हैं उनको मैं निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा किए गए पुण्यार्थियों को जरूर ये बताएं कि हमारी पुण्यार्थी जो है खुश होकर के जा रहे हैं यहाँ से, और अपने अपने गांव जा करके हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री को इस तरीके से आशीर्वाद दें कि आने वाले 2024 में हमारे मुख्यमंत्री देश का सेवा करें। तथा हमारा राष्ट्रीय बिहारी समाज और हिंदी समाज ये निवेदन करता है इंडिया गठबंधन से कि हमारे अगर मुख्यमंत्री को देश का अगर फेस बनाया जाता है तो हमारी मुख्यमंत्री को देख करके हम लोग को जरूर देश का सेवा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को आगे आएंगी। और इसी शब्दों के साथ मैं अपना मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य शेष कर रहा हूं। महिला ऑर्गेनाइजर श्री सुजीत सिंह संक्षिप्त वक्तव्य रखेंगे। मैं सुजीत सिंह भारत क्षत्रिय समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत क्षत्रिय समाज की तरफ से प्रणाम करता हूँ मैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को जो है कि बहुत ही समय का अभाव है, तो मैं बहुत संक्षिप्त परिचय दूंगा। मंच बहुत बड़ा है, समय बहुत अल्प है कहने के लिए। देखिए, बचपन से जो है मैं जब था तो रविंद्र जैन का गीत था ना कि सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। वो इसलिए था कि उसकी केवल मान्यता इसलिए थी कि राह बहुत दुर्गम थी, बहुत कठिनाइयां थी। मतलब जो लोग आते थे वो लौट नहीं पाते थे, पुराने वक्ताओं ने जैसा बताया है। तो लेकिन मैंने सही में ये मतलब ये नहीं है कि ये मंच पे मैं यहाँ हूँ और सारे प्रशासनिक अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सचमुच 2011 के बाद मैंने स्थितियाँ 360 डिग्री तक चेंज हुई हैं और वो लाइन पूरी तरह बदल चुकी है कि सारे तीर्थ एक बार, शायद गंगा सागर बार बार। अब हर साल है, मेरे गांव से कई लोग आते हैं जो हर 2 साल पे 3 साल पे आते हैं और कहते हैं कि स्थितियां पहले से बहुत बदली है भैया। खैर, मैं अपनी संस्था का बहुत संक्षिप्त परिचय दूंगा। हमारी संस्था का कार्यालय भारत क्षत्रिय समाज का मैडम आपके ही जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 31 नंबर हरीश मुखर्जी रोड हमारा स्थायी पता है और कैंप नंबर 43 हम यहाँ हर साल लगाते हैं। 1980 में हमारी संस्था स्थापित हुई है और स्वयं वित्तीय पोषित संस्था है हमारी। हम केवल सारा प्रोग्राम, हम चाहे छठ पूजा का करें, ब्लड डोनेशन करें, या ये हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। ये 8 दिवसीय हम यहाँ मुफ्त लंगर चलाते हैं, मुफ्त चिकित्सा देते हैं और प्राथमिक चिकित्साएं देते हैं। एम्बुलेंस की भी अरेंजमेंट है हमारे पास। तो ये सारी हम स्वपोषित वित्तीय संस्था है हमारी। हम खुद ही अपने जो है चंदा इकट्ठा करते हैं, इसको करते हैं। लेकिन बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद आपने जो दिया है, आपकी स्वतः आपने इच्छा जाहिर की कि भारत क्षत्रिय समाज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। भारत क्षत्रिय समाज आपके लिए बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि मैम, यदि हमें स्वागर द्वीप में यदि कोई ज़मीन आप अलॉट कर पाएँ तो हम वहाँ भी सेवा कार्य कर सकते हैं। यह हमारा माद्दा है, यह हमारा वादा है। और इसी शब्दों के साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रही है कि जल्दी उनको कहीं जाना है, और तो मैं जल्दी अपनी जो है कि समाप्त कर रहा हूँ अपनी वाणी को। लेकिन ये गुजारिश भारत क्षत्रिय समाज की तरफ से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को रहेगा मेरा। मैंने 2 ही रूप इनके देखे हैं जिंदगी में, एक योद्धा का और एक दाता का। तो वो उस हैसियत में बैठी है कि भारत क्षत्रिय समाज के लिए कुछ कर पाएं। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের চেয়ারম্যান শ্রী সুজিত সিং, তাকেও আমরা ধন্যবাদ জানালাম সুন্দর এই বক্তব্যের জন্যে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবারে তাঁর বক্তব্য রাখবেন। উপস্থিত আজকে ক্ষত্রিয় সমাজের সুরিন্দরজি, बिहारी समाजेर हरिंदर भैया, गंगा तीर्थ मेला का जो हर साल हमको मदद देता है मिस्टर त्रिवेदी जी, हमारा एक्स चीफ सेक्रेटरी द्विवेदी जी, आलापन बंदोपाध्याय, अभी हमारा चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल और सीएमओ का एडवाइज़र है। हमारा न्यू चीफ सेक्रेटरी मिस्टर गोपालिका है, जिसको बात आपने सुना। नंदिनी है हमारा होम सेक्रेटरी। हमारा कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल है। डीजी नया बना राजीव कुमार, वो भी उपस्थित है। हमारा इधर में उपस्थित है शांतनु सेन, सुरिंदर गुप्ता, सौमित्र, शांतनु, डॉक्टर काशिम, देन विनोद कुमार, पुलक राय सह आमादेर संचालक सतीनाथ दा एवं समवेत माँ भाई बोनेरा जारा एखाने बसे आছেন। मैं पहले आप लोगों को स्वागत करती हूँ कि आप हमारा स्टेट में आए हुए हैं गंगा सागर तीर्थ को देखने के लिए, और गंगा जैसे सागर में मिशा वो जगह में आप जाके मिल सकता है, आप नहा सकता है और जिंदगी का पवित्र जो कर्तव्य है उसको आप पालन करने चाहते हैं। हर धर्म अपना का होता है,
कोई हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई शेड्यूल कास्ट होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई दलित होता है, कोई अपर कास्ट होता है, कोई लोअर कास्ट होता है। लेकिन हम लोगों ने कभी कोई डिवीजन पॉलिटिक्स नहीं करते। हम लोग हर धर्म पे जाते हैं, हर कर्म पे जाता है। कि हम कहते हैं कि धर्म अपना अपना सबका, अपना अपना सबको धर्म होता है। आप अच्छा से पालन करो, कोई ऐतराज नहीं है हम लोगों को। हर धर्म को हम श्रद्धा करते हैं। लेकिन फेस्टिवल जब होता है, मेला जब होता है, ये हर इंसान के लिए होता है, हर आदमी के लिए होता है। जब दुर्गा पूजा बंगाल में होता है, पूरा बाहर से बहुत सारे आदमी इंक्लूडिंग द वर्ल्ड लोगों ने आते हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम होता है कि यूनेस्को हमको हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया। मैं गंगा सागर को बारे में त्रिवेदी जी बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बोलने के लिए, मैं बताने के लिए बोलने चाहूंगी। 4-5 दफे हम लेटर लिखा, सबको साथ बात किया, काफी सेंट्रल मिनिस्टर का साथ बात किया, बहुत दफे मांग किया, लेटर लिखा, बात किया, मांग किया कि कुंभ को आप जैसे जातीय मेला बोला है, और सारे मेले हैं, बहुत सारे मेले को आप रुपया देते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। खाली गंगा सागर मेला है जिसमें आप लोग एक पैसा भी नहीं देते हैं मदद करने के लिए। मैं जब पहले यूथ आंदोलन करते थे, मैं देखते थे इधर में जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थे वो टैक्स लेते थे जो टूरिस्ट जाते थे। ये लोगों ने मेरे को हर दफे बोला कि हमारा पास टैक्स भी लेता है, हम जब मेला विजिट करने आते थे। तब से मैंने ठीक किया था। हमारा सरकार आने का पहले जब हमारा जिला परिषद जीता तो मैंने हर आदमी को बोला टैक्स मुकुब कर दो। और दूसरी बात है कि जितना लोग गंगा सागर मेला में जाएंगे 8 से 9 से 15 तक, 9 to 15 is covered, 16th, 9 से 16 तक अगर किसी को कोई दुर्घटना में मर जाए और कुछ हो जाए, हम नहीं चाहते हैं कुछ हो, अगर हो जाए तो हर परिवार के लिए, हर इंसान के लिए हम 5 लाख रुपया करके हम लाइफ इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस करके रखा। चाहे प्रेस मीडिया हो, चाहे तीर्थयात्री हो, चाहे इंसान कमन पिपुल हो, সবার জন্য 5 লাখ টাকা করে পুলিশের লোক হোক, সিভিল ডিফেন্স হোক, ফায়ার ব্রিগেড হোক, হেলথ কর্মী হোক, পিডব্লিউডি হোক, সিপি বা যে কোনো কেউ, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ও গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারাই কাজ করেন সকলে যে কোনো কারোর জন্য আমরা কিন্তু 5 লক্ষ টাকা করে ইন্স্যুরেন্স করে রেখে দিয়েছি 9 तारीख থেকে 16 तारीख। पहले मैंने गंगा सागर को मीटिंग किया सबको साथ, उसके बाद जो जो काम था हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया। उसका बाद कल मैं खुद गंगा सागर गया। मैं दिन में गंगा सागर कपिल मुनि आश्रम विजिट किया। उसका बाद हम रात 12 बजे मैंने एक सरप्राइज विजिट भी किया। उसके बाद आज गंगा सागर से हम जयनगर गया। जयनगर से हम गंगा सागर से जयनगर, जयनगर से हावड़ा डुमुरजला होके मैं नवान्न जाके पहुंचा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उस्ताद रशीद खान गुजर गया है, जिन्होंने सुर का एक बहुत बड़ा सम्राट थे। उसका जन्म यूपी में हुआ, उसका परिवार यूपी में रहता है, लेकिन उन्होंने पूरा जिंदगी बंगाल में बिताया। उसको पद्म विभूषण मिला, उसको बंग विभूषण मिला, उसको संगीत सम्मान मिला, सब कुछ मिला है। तो मैंने जब सुना वो परिवार हमको बहुत प्यार करते हैं, रिश्ता है हमारे साथ, तो मैंने वो हॉस्पिटल में गया। जाने के बाद परिवार के साथ मिलके काल का सब बंदोबस्त किया है। क्रिमेशन का जो उसको धर्म का मुताबिक वो जो काम करेगा, सत्कार करेगा,
जो उसको मजार में टालीगंज मजार में जाएगा, उसको पहले रविंद्र सरोवर में हम लोग गन सैल्यूट भी देंगे। तो वो प्रोग्राम सब फाइनल करके तब हमको इधर में आने से 10-15 मिनट लेट हो गया, कि एक साथ में इतना काम पड़ गया। तो इसी के लिए ये हमारा हर रोज चलते हैं। उसको बाद हम नवान्न में जाके कुछ फाइल भी साइन करके आया 15 मिनट में, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है। तो काम तो चलता ही रहेगा। खत्रिय समाज, हम आभारी हो आपको जी, आपने हम लोगों को रिक्वेस्ट किया था आपको कैंप ओपन करने के लिए। हम मोरिस मुखर्जी रोड से जब जाता है आपको ऑफिस हम देखता है, मैं सोचता है ये लोग कौन है, कभी कभी हम सोचता है। और आप लोग को बधाई हो, और हमारा जो बिहारी समाज भी हमारे साथ काम करते हैं उसको भी हमको बधाई हो। और जो त्रिवेदी एंड हिज ऑल द NGOs, द एसोसिएशन एंड ऑल, हम उन लोगों को बहुत जो वॉलंटियर्स के काम करते हैं, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, भारत सेवाश्रम संघ हो, चाहे कितना भी समाज है, सब समाज मिलके गंगा सागर में पुलिस का साथ मिलके बहुत मेहनत करते हैं, मदद करते हैं। हम लोग भी पूरा तरह, देखिए कुंभ मेला में जाने के लिए बस ट्रेन मिलता है, लेकिन गंगा सागर में हर आदमी को पानी से जाना पड़ता है। इट इज नॉट दैट इजी, इट इज समथिंग डिफिकल्ट। एंड दिस टाइम ऑल्सो वी हैव अरेंज्ड सो मेनी थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले ये लोगों को पता है कि टैक्स तो हम लोग मुकुब कर दिया, पूरा एरिया को लाइट में इतना सजाया, उसमें 8 करोड़ रुपया दिया, पूरा गंगा सागर झलमल कर रहा है। मुड़ी गंगा जो है जिसको पार होके जाना पड़ता है, उसमें कभी कभी ज्वार जो बहते हैं भाटा भी होता है। तो उसमें क्या होता है, हॉट तारा ज्वार नहीं रहता है। जब भाटा का लो टाइड होता है तब उसको इंतजार करने पड़ता है 4-5 घंटा। हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि जब बफर जोन एक बना दिया, बफर जोन में आके इंतजार करे, और जब ज्वार आ जाएगा तो ये लोग 4 घंटा बाद में पुलिस उसको लेके आ जाएंगे बास में, तो पानी से पार कर देंगे। इसमें आपको सहयोगिता हम इसी में करने चाहती हूँ। हम लॉट 8 बड़ा जेटीओ बना दिया, लेकिन गंगा में ज्वार होता है तो भाटा भी होता है, ये तो हमारा हाथ में नहीं है। जैसे चंद्र सूर्य ग्रह तारा सब होता है, जैसे चांद सूर्य देव के प्रोग्राम तैयार होता है, जिंदगी में जैसा जिंदगी भी रहता है, मौत भी होता है, जिंदा भी होता है। तो इसी के लिए ऐसा तरह सब चलते हैं दुनिया। तो वो टाइम हम बहुत ड्रेसिंग किया है, हमको और से जितना करना था हमने कर दिया। हम लोग घर भी बना दिया, रहने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया। हम लोग 21 जेटी का बंदोबस्त किया है, जिसमें बहुत सारे ज्यादा वेसल्स, बार्ज, जो 2500 बास दिया है, 6 बार्ज दिया है, 32 वेसल दिया है, 100 लॉन्च दिया है, एक्स्ट्रा ट्रेन दिया है, बार्ज वेसल लंच में लाइफ जैकेट भाई दिया है, इसी के लिए कि आपको सेफ्टी के लिए। हर व्हीकल में जीपीएस और सैटेलाइट ट्रैकिंग भी रहेगा, कोई मिसिंग भी हो जाएगा उसको लिए भी बंदोबस्त किया है। पूरा मेगा कंट्रोल रूम से इसको मॉनिटरिंग करेंगे। और गंगा सागर यातायात करने के लिए सिंगल टिकट हम लोग ने कर दिया, जाने का आने का 2 दफे भाड़ा आपको देना नहीं पड़ेगा। जो बस में जाने चाहता है इसमें सिंगल टिकट हम लोगों ने अलाउ कर दिया। ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए 13 बफर जोन, 10 पार्किंग जोन बना दिया। बहुत सारे पुलिस सीनियर ऑफिसर्स वो लोगों को हम लोग उधर में पोस्टिंग किया है।
ये छोड़ के 2400 सिविल डिफेंस और अदर वॉलंटियर्स भी रहेंगे। ट्रीटमेंट के लिए 300 बेड का लिए एक स्पेशल बंदोबस्त किया है। बहुत सारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब जा रहा है। और एयर एम्बुलेंस, अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो एयर एम्बुलेंस और ग्रीन जो कॉरिडोर होता है ना, जल्दी से जल्दी किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो ले आने के लिए पूरा हमने उसको बंदोबस्त कर दिया है। और हमारा लक्ष्य है गंगा सागर मेला को इको फ्रेंडली ग्रीन मेला करने के लिए। मैं आप लोगों को सब कहा है कि आप लोगों ने मदद कीजिए, हमारा ओर से जो करना हम कर दिया। 12, 13, 14 3 दिन सागर में आरती भी होगा, जैसा बनारस में आरती होता है। अभी हमारा गंगा, इधर में भी हमारा गंगा में हर तरह आरती होता है। ऐसे सागर में भी ये स्नान करने का नाते 12, 13, 14 को आरती देखने का मौका भी आपको मिलेगा। जनता को कोऑपरेशन और कांटेक्ट करने के लिए बांग्ला भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, ऐसा भाषा में हमारा अनाउंसमेंट भी होगा। हमारा बहुत सारे कैंप भी रहेगा। इसी के लिए आप लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं है। खाली एक ही बात, कलकत्ता से सब एक साथ में नहीं जाएंगे आप। पुलिस जैसा मॉनिटरिंग कर देंगे, कोऑर्डिनेशन कर देंगे, ऐसा आप चलिए। और उधर में जाने का बाद पुलिस टोटल मॉनिटरिंग करेंगे। हम भी 15, 16, 14 बाहर में नहीं जाते हैं, हम इधर में रुकता है। कि लास्ट ईयर भी मोर देन 80 लाख 80 लाखों से ज़्यादा तीर्थयात्री ने आए थे, गंगा सागर में स्नान किया था। 15 तारीख रात से 16 तारीख तक नहाने का जगह, नहाने का पुण्य स्नान कहते हैं उसको, टाइम है। लेकिन उसको पहले भी बहुत जाते हैं, पूरा साल जाते हैं। आप लोग अच्छा से जाइए, अच्छा से गंगा सागर कपिल मुनि का आश्रम को दर्शन कीजिए, आप अच्छा से नहाइए और उसको पवित्र पानी से आपको हृदय को, आपको दिल को पवित्र कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा सरकार का साथ हर एनजीओ का, हर कम्युनिटी का, हर कास्ट का, हर क्रीड का, हर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे कलकत्ता कॉरपोरेशन अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे आईएनसी डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई जो पावर डिपार्टमेंट हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, बंगाल गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट ये मेला में युक्त है। और हमारा जो ऑफिसर लोग है, हमारा जो पुलिस लोग है, हमारा जो वर्कर लोग है, ये लोग भी बहुत मेहनत से काम करते हैं। और हम काम का डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। 4-5 मिनिस्टर एक एक जगह में रहता है टू कोऑर्डिनेट विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। जितना भी मदद करना है हम लोगों ने कर दिया। किसी का कंबल नहीं है तो कंबल भी दे देता है, छोटा छोटा घर बना दिया रहने के लिए। ऐसे बिना पैसा में पानी भी दे देता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो खाना भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, मदद भी करते हैं। तो अगर मिलजुल के हम नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? मिलजुल के करना ही एक मिलन तीर्थ होता है। उसको ही बड़ा तीर्थ कहा जाता है, जिसमें हर धर्म का, हर वर्ण का आदमी एक साथ में मिल के कह सकता है हम लोग एक है, हम लोग एक है, हम लोग एक है, हम लोग एक परिवार है, हम लोग एक परिवार है, हम लोग एक परिवार है। हम एक परिवार का मेंबर है, जो परिवार में सब रहेगा। अगर काला रहेगा तो सादा भी रहेगा, सादा रहेगा तो काला भी रहेगा। कोई काला होता है, कोई सादा होता है। हम जब कपड़े पहनते हैं, कोई लाल कपड़े, लाल रंग का पहनते हैं, कोई गेरुआ रंग का पहनता है, साधु सन्यासी पढ़ते हैं, उसको मदद मानते हैं। लेकिन सब कलर सबको नहीं मानते, मिसयूज नहीं होना चाहिए। लेकिन फर्क तो होता ही है। कोई ग्रीन कलर पढ़ता है, कोई ब्लू कलर पढ़ता है, कोई ऑरेंज कलर पढ़ता है, कोई येलो कलर पढ़ता है, कोई व्हाइट कलर पढ़ता है। ऐसा धर्म में भी
हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, कितना धर्म है हमारा, एक एक कम्युनिटी के एक एक धर्म है। लास्ट में फिर हम कहने चाहूँगी, हर धर्म अपना 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 धर्म को आप पूजा करो, आप पवित्रता से करो। आप हम सब धर्म को रेस्पेक्ट करते हैं, साथ साथ में हम अदर जो रिलीजियंस है हर धर्म को भी हम श्रद्धा करते हैं। आप लोग अच्छा रहिए, सुख आपको परिवार को दे गंगा माई, गंगा माता। छठ पूजा में कि इधर में छठ पूजा में हम लोग 2 दिन छुट्टी देता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देता है, हम लोग 2 दिन छुट्टी देता है। इसी के लिए हर पर्व में, ईद के लिए भी हम 2 दिन छुट्टी देते हैं। दुर्गा पूजा का छुट्टी तो सबको मिलता है, ईद का छुट्टी सबको मिलता है, छठ पूजा का छुट्टी ऐसा सबको मिलता है। हर तीर्थ हमारा तीर्थ है, ये मान के आप लोग चलिए। हमारा पूरा भरोसा है कपिल मुनि जी का पवित्र आश्रम सब कुछ हम लोगों को अच्छा से अच्छा कर देंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, नया साल का शुभकामना, अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार, ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, নিজের প্রতি ভরসা রাখবেন। গঙ্গাসাগর মেলা, সব তীর্থ একবার, গঙ্গাসাগর বারবার, এই ভাষা নিয়ে ফিরে যাবেন। অনেক ধন্যবাদ। আজকে পুলিশের সাইবার ক্রাইমের একটা বাস ওপেন হয়েছে এবং আজকে তাছাড়াও ভারত ক্ষত্রিয় সমাজের, রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজের অফিস ওপেন হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার পুলিশ সাউথ সুবারবান ডিভিশনেও উদ্বোধন হয়েছে। অরূপের যাওয়ার কথা ছিল, যেতে পারেনি, কারণ ওরা রশিদ খানের ওখানে আছে, কারণ আমাদের ভাগ করে নিতে হয়েছে তো কাজ, সেই জন্য। কিন্তু আমি সবার হয়ে সবাইকে অনেক অভিনন্দন জানালাম, অনেক ধন্যবাদ জানালাম। প্লিজ टेक ऑल केयर, प्लीज़ टेक ऑल केयर फॉर एवरीबॉडी। हर आदमी को केयर करने के लिए हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, हमारा पीएचई डिपार्टमेंट भी है, हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, हमारा आईएनसीए डिपार्टमेंट है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा क्या नहीं है, हर डिपार्टमेंट है आप लोग का साथ। आप लोग अच्छा से रहिए, अच्छा से तीर्थ करिए, यही हमारा बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। গঙ্গাসাগর মেলার ট্রানজিট ক্যাম্পের উদ্বোধন করলেন আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। গতকালই তিনি সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা করে এসেছেন। আপনারা শুনলেন সঙ্গীত জগতের একটি ইন্দ্রপতনের সংবাদ। ওস্তাদ রশিদ খান আর আমাদের মধ্যে নেই, তার আত্মার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। যথাবিহিতভাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটাও করা হবে। গঙ্গাসাগরের দর্শনের জন্য যেসব পুণ্যার্থীরা এসেছেন তাদেরও আমরা আন্তরিক স্বাগত জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের তীর্থযাত্রা সফল হোক, সুন্দর হোক, ভালো থাকবেন সবাই। ধন্যবাদ, নমস্কার।